شہداء بالخصوص رہبر معظم کی رحلت کے بعد ان کی بخشش کے لیے بے شک کہ وہ بخشے ہوئے ہیں اور عالی مقام پہ ہیں، ایک فاتحہ کی تلاوت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد۔ اللہم صل علی۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور بھی ہدیہ صلوات۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے بانیان مجلس کی یہ زحمت اور اس کوشش کی استجابت کے لیے ایک اور ہدیہ صلوات۔ عزاداران محترم، شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا پہ لا کے بٹھایا۔ وہ فرش عزا نہ صرف کہ ہم انسان بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں، فرشتے آ کر بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ لوگ اعتراضات بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث قصہ، مشہور و معروف حدیث کہ جس کی تلاوت کا بہت ثواب ہے اور بہت تاکید کی گئی۔ جب آیت تطہیر نازل ہو چکی، فرشتے آ چکے، حضرت جبرائیل آ چکے، پنجتن پاک تحت قصہ آ چکے، تو رسول خدا نے علی کو کیا فرمایا؟ اے علی جان لو، جب بھی ہمارے شیعہ ہمارے ذکر کریں گے تو فرشتے آ کے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ یہ عظمت۔ اور پھر جب ہم اپنے گھروں میں یہ صف اعضاء بچھاتے ہیں تو ملائکہ کا نزول ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ آشیانے یہ نورانی ہو جاتے ہیں کہ ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں وہ کیف کرتے ہیں کہ یہ کون سا گھر ہے جس سے اتنی نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ عظمت اہل بیت ہے کہ وہ فرشتے ہمارے ان فرش عزا پہ آتے ہیں۔ آپ اعتراض بھی کریں گے کہ حضور فرشتے آخر اتنا ان کو کوئی کام کاج نہیں، خدا نے ان کو اس کام کے لیے بنایا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں
کہ हर फरिश्ते को खुदा ने एक मुअय्यन जिम्मेदारी और ड्यूटी दे रखी है। कलाम के जो अमीर हैं नहजुल बलागा सैयद रजी ने सिर्फ खुतबात अमीर अल मोमिनीन को इकट्ठा किया है, और ये उनकी बहुत करम नवाजी है, उनकी ज़हमात। उलमा की सेहत व सलामती के लिए एक सलावत हदिया करेंगे। उलमा मोहम्मद वाजिल फरज, उलमा ने बहुत जहमत की कि ये दीन उन मुश्किलात उन परेशानियों के बायस चलता चलता यहाँ तक पहुंचे। एक सलावत हदिया कर देंगे बस, ठीक है, थैंक यू। जिन मुश्किलात के बायस ये दीन हम तक पहुंचा, अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि जिस फरिश्ते को खुदा ने मुअय्यन कर दिया है कि वो रुकू में है, वो ता कयामत रुकू में रहेगा। जिसको सजदे की जिम्मेदारी दे दी वो सजदे में रहेगा। जिसका काम है बारिश बरसाना वो हमेशा बारिश बरसाता रहेगा। जिसका काम है वही लाना वो सिर्फ वही के लाने पर मामूर है। जिसका काम है इंसान की रूह को कब्ज करना वो सिर्फ इस काम पे है। मगर वाहिद वो अमल है कि वो खुदा से इजाजत लेकर जमीन पे आते दिखाई दिए हैं, वो फर्श अज़ा जब बिछ जाता है, वो फर्श अज़ा पर मजलिस अज़ा सुनने के लिए आते हैं। ये कायदे दुनिया है, और हम भी जिंदगी में इस चीज को करते हैं कि इंसान कभी आला चीज को छोड़ के अदना की तरफ नहीं जाता। तवज्जो करेंगे सामीन मोहतरम जुमले पे कि आला चीज को छोड़ के अदना की तरफ नहीं जाता। नॉर्मल रूटीन में भी हम एक रूटीन चल रही होती है, हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं अपने काम को, अगले काम की तरफ नहीं जाते। अब फरिश्ते के जो काम छोड़ के आ रहे हैं, आया कोई तो आला काम उनको नजर आ रहा है कि वो इस फर्शे अज़ा पे आके बैठते हैं। हमने सिर्फ दो ही मकाम देखे हैं, या तो फातिमा के घर काम करने आते दिखाई देते हैं, या फर्शे अज़ा पे हुसैन की मजलिस सुनने आते दिखाई देते हैं। ये अजमत है जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की कि फरिश्ते के खुदा ने जिनको मुअय्यन व मखसूस काम दे दिए वो छोड़ के जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में दिखाई देते हैं। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि खुदा ने हमें उस उम्मत में से पैदा किया। हमें फातिमा तो ज़हरा की वो दुआ नसीब हुई कि बीबी की अजमत पर बुलंदतर सलावत हदिया कर देंगे। बीबी की अजमत पर क्या कहिए, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे गुफ्तगू करते हैं कि बीबी की वो दुआ हुई कि बाबा जान मेरे हुसैन जब शहीद हो जाएंगे कौन सी उम्मत आएगी इन पे गिरिया करने। खुदा का शुक्र है लाख लाख कि हम उस उम्मत में से हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक हदीस मिलती है, इमाम कहते हैं रहमल्लाहु इमरान रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, खुदा रहमत करे हमारे उन बंदों पर, उन खास बंदों पे जो क्या करते हैं, हमारे अम्र को जिंदा करते हैं। रावी पूछते हैं आपका अम्र यानी जिंदा करना क्या? पहले तो सवाल ये कि आपका अम्र क्या है। दूसरे मरहले पे कि आया आप जो इतनी अजमत वाली हस्तियां हैं, आपका अम्र हम जिंदा भी कर सकते हैं या नहीं? मौला फरमाते हैं कि जान लो हमारी तालीमात को सीखना है, हमारे अहकामात को सीखना है, और फिर वहां तक पहुंचाना है कि जहां तक वो पहुंच नहीं सकते। और ये हम इमाम की दुआ के नतीजे यहाँ पर आए बैठे हैं कि हम चाहते हैं पहले मरहले में ये सीखें अज़ादारी मोहम्मद व आले मोहम्मद, और फिर इन तालीमात को आगे से आगे पहुंचाएं। ये अजमत है, और ये फिर खुदा ने वसीले बना दिए हैं कि खुदा की कायनात में खुदा वसीलों से कुछ काम करता है। हम भी उसके एक वसीले हैं कि हम इमाम हुसैन के जिक्र आगे से आगे फैलाने का बायस बन रहे हैं। एक सलावत हदिया कर देंगे। दुनिया का एक और कायदा है, और खुदावंद मन्नान की इस दुनिया जो तख्लीक हुई वो इल्लत व मालूल और सबब व मुसब्बब के साथ चल रही है। हिदायत कि जो मुहिम तरीन खुदा की जिम्मेदारी है कि इंसानों की हिदायत और रुश्द करे। हादी खुद खुदा की ज़ात है, मगर हिदायत के लिए उसने पैगंबरान भेजे, अंबिया भेजे, आइमे मासूमीन भेजे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिस्क पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? राज़िक खुदा की ज़ात है, और रिस्क उसने हर बंदे को देना है। एक बच्चा अभी शिकम मादर में होता है कि उसके रिस्क का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी रूह कब्ज नहीं हो जाती रिस्क का सिलसिला चल रहा है। हम सवाल करेंगे रिस्क तो लाता है एक फरिश्ता, आया रिस्क लाना किसकी जिम्मेदारी है?
تو عالم اسلام کے پاس اور آپ کے اعتقادات میں یہ ہے کہ خدا نے ایک فرشتے کو مامور کر دیا ہے اس کام پہ. آگے چلتے ہیں تھوڑا. بارش برسانا ذمہ داری تو خدا کی ہے، مگر آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کے اعتقادات میں ہے کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو اس کام پہ مامور ہے. تھوڑا اور آگے چلیں. موت و حیات، کون قادر ہے موت و حیات پہ؟ جواب یہی ہوگا کہ پروردگار عالم ہے اس کام پہ مامور. کیوں ایک فرشتہ ہے کہ جو اس کام کو انجام دے رہا ہے؟ تو سوال ہوگا یہاں پر، آیا یہ خدا کے کام ہے یا فرشتوں کے ہیں؟ اگر کام خدا کا ہے تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اگر کام فرشتوں کا ہے تو خدا بیچ میں کہاں پر ہے؟ تو عالم اسلام صرف ایک جواب دیتا ہے کہ وہ سنت الہیہ، یہ خدا کی سنت ہے کہ وہ مسبب الاسباب ذات سبب اختیار کرتی ہے کہ دنیا کے تمام کام انجام پائیں. یہ اس کا لطف الہی ہے. وہ ان اسباب کا نیازمند نہیں. کوئی پریشان نہ ہو جائے اس بات پہ، وہ ان اسباب کا نیازمند نہیں، یہ سبب اس کے نیازمند ہے کہ اس نے ان وسیلوں کو رکھا ہوا ہے کہ ہم اس سے فیض حاصل کریں. یہ خدا کا فیض ہے کہ یہ وسیلے اختیار ہوں. اب جب بات آئی کہ حسین کا ذکر اس دنیا میں بلند کیا جائے، کیوں حسین کا ذکر بلند ہو؟ حسین نے کہ جس نے نوکے نیزہ پہ خدا کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ خدا نے کہا تا قیامت حسین میں تمہارا ذکر کو بلند رکھوں گا. یہ شکر ہے کہ خدا نے اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہمیں چنا ہے اور ہم اس کا اس وعدے الہی کو پورا کر رہے ہیں کہ ذاکر خود خدا کی ذات ہے. ذکر کرنا خود خدا کا ذمہ داری ہے، مگر خدا نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم فرش اعضا کی زینت بنے. ایک صلوات ہدیہ کر دیں گے بلند پر. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہیں. خدا نے ہم اس کو تھوڑے سے اپنے جو ڈائمنشن وسیع کریں، ہم دیکھیں کہ لوگ دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. ایک سادہ سی مثال دیتا چلوں، ہماری زندگی میں ہر شخص کمال کے پیچھے ہے. اور سادہ کروں اس کو، مادی دنیا میں ہم دیکھیں اپنی میٹیریلسٹک ورلڈ میں کہ ہم اگر میرے پاس تھوڑی سی ایک ڈگری ہے تو میں کہتا ہوں نیکسٹ پہ میں نے جانا ہے، کیونکہ میں بیسٹ سے بیسٹ کی طرف جا رہا ہوں. اگر میرے پاس گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، میں کہوں گا میرے نیکسٹ مرحلے پہ ایک بڑا گھر ہو جائے. گاڑی ہے چھوٹی تو اگلے مرحلے میں ایک بڑی گاڑی ہو جائے. اب زمانے والے نے جب یہ دیکھا، وہ اپنے اپنے مذہب میں، کوئی عیسائی ہے وہ عیسائیت میں، کوئی یہودی ہے وہ اپنے مذہب یہودیت میں، کوئی اور ہیں جتنے بھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ایک اپنے مذہب میں تو ہیں لیکن ہم کمال جس کو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں وہ کمال نہیں نظر آیا. جب انہوں نے نظر دوڑائی کہ ایک ایسی ذات ہے، ہم بے شک اپنے مذہب میں ہیں، اپنے رہنما کو مانتے ہیں، مگر انہوں نے جب مقایسہ کر کے دیکھا کہ وہ صفات، وہ کمالات، وہ عظمتیں جب انہوں نے کمپیریزن کی تو ان کو صرف ایک حسین ابن علی کی ذات نظر آئی، اور وہ اپنا در چھوڑ کے، اپنے رہبروں کا در چھوڑ کے آ گئے حسین ابن علی کے در پہ کہ صرف حسین کی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں یہ ہدایت دے سکتی ہے، ہمیں وہ رشد دے سکتی ہے، ہمیں وہ عظمت کے دروازے پہ لے جا سکتی ہے. زمانے والے اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی دکھا دو. لوگ تمہارے در سے تو ہمارے در پہ آتے ہیں، کوئی ہمارے در سے تمہارے در پہ جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیا. ایک صلوات ہدیہ کر دیں گے بلند پر. یہ عظمت ہے در اہل بیت کی کہ یہ در ہمیں کبھی کسی کے سامنے رسوا ہونے نہیں دیتا. یہ باب العلم کا در ہے کہ جس کے ماننے والے کبھی زمانے کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتے. اور میں کہتا رہتا ہوں ایک جملہ، 61 ہجری میں جب حسین ابن علی سے بیعت کا دعویٰ کیا گیا، حسین ابن علی نے اس بیعت کو لا کے ایسے منہ پہ تماچا مارا یزیدیت کا کہ آج تک ہم ٹیسے دیکھ رہے ہیں اس کی، اور دشمن اسی آگ میں جل رہا ہے کہ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی حربے تلاش کرتا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کو بند کریں. اور کہتا رہتا ہوں کہ اگر سید سجاد اور حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نہ ہوتی تو یہ کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا. آپ کے معرفت کے آنسو اپنی جگہ پہ، خدا ان کو قبول فرمائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی فضائل محمد و آل محمد میں آنسو آ جائیں، یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے کہ مصائب میں تو ہم روتے ہی ہیں، مگر فضائل وہ مرحلہ ہے کہ ہم ان کی معرفت کو پہچان کے 2 آنسو ہماری آنکھوں سے آ جاتے ہیں. بی بی نے دربار یزید میں جب گئی ہیں، علی کی شیر بیٹی دیکھتی رہیں وہ دربار کہ جس میں بابا پہ ظلم و شتم ہوتا رہا، گالم گلوچ ہوتی رہی، مگر علی کی بیٹی نے کیا علی کے لہجے میں کہا ہے، اس کو فنار کیا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے کہ اے یزید کت قیدک
वसअ सायक नासिब जुहदक फवल्लाह ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। यजीद तो हमेशा मुर्दाबाद रहेगा और हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद रहेगी। ये वादा ज़ैनब कुबरा है कि ये ज़ैनब कुबरा ने कह दिया था और उनकी जबान का जो कलाम हुआ वो आज तक सच होता नजर आ रहा है कि ए यजीद तू जितनी चालें चल ले, तेरा कभी भी जिक्र नहीं हो सकता, हुसैन का जिक्र कामयाब रहेगा। मैं जो नुक्ते की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं, मौला की बेटी ने जो यहाँ पर कलमा इस्तेमाल किया है, ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, कि निस्बत जोड़ दी कि जिक्र वही अगर हमेशा से जिंदा रहेगी तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र के सदके रहेगी। ये भी तो हो सकता था बीबी पहले कलमे वही को ले आती और बाद में जिक्र को ले आती। बीबी ने यहाँ पर मैसूर कर दिया, जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र होगा कुरान की तालीमात जमाने में रहेंगी। यूं क्यों ना कह दूं, जब तक जमाने में अली अली की सदाएं रहेंगी तब तक वही इलाही की सदाएं चलती रहेंगी ये बीबी की दुआ के सदके हैं कि हम यहाँ पर आके बैठते हैं। और ये अजमत, ये बाब खैबर से हमें अजमत मिली है, ये रसूल खुदा के दर से मिली है। हमें कोई इख्तलाफ नहीं, तारीख में इख्तलाफ नहीं, लेकिन हम तवज्जो दिलवाना चाहते हैं जो लोग अभी तक उस बात पे खड़े हैं कि रसूल 40 साल बाद रसूल बने, हम उनको दावत फिक्र देना चाहते हैं। आओ जरा सोचो तो सही कि ये कैसे मुमकिन है कि आप कहो कि रसूल एक जात के जिसको रिसालत मिलनी है वो 40 साल वही नाजिल हुई और वो गए, उस वक्त उनकी ये कैफियत हो गई कि उनको समझ ना आई, वो गए हजरत खदीजा के पास। हजरत खदीजा ने कहा आए मैं ले चलती हूँ एक और फलां शख्स के पास जो ना खुद मुसलमान था, वो सिर्फ तौरात का इल्म जानता था, इंजील का इल्म जानता था। उसने कहा ए रसूल आप अब रसूल बन गए हैं। ये हम दावत फिक्र देना चाहते हैं, इख्तलाफ नहीं है हमारा किसी से। अब अगर हम उस इस्लाम पे चलते रहें जो वर्का बिन नौफल का था या जो राहिब का था तो हमारा नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बाब खैबर से इल्म लेंगे और रसूल खुदा के दर पर हम खुद जाएंगे इन चहारदा मासूमीन के वसीले से, तो हम खुद समझेंगे कि इल्म असल हकीकी इल्म क्या है। अहले बैत की अज़मत पर एक सलावत हदिया करेंगे। यह है दर अहले बैत, यह हमें अजमत का दर्स देता है, यह हमें सिखाता है। इसीलिए तो ज़ियारत जामिया कबीरा इमाम नकी से जो मंसूब है उसमें इमाम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अब्वाब अल्लाह, ए खुदा के दरवाज़ों तुम पर सलाम हो। अब जब घर के दरवाजे हैं और हमने एक घर में दाखिल होना है तो हम कहाँ से दाखिल होंगे। एक रिवायत का आपको समझा के आगे नतीजा दूं। एक आयत है कुरान की कि जिसमें इरशाद हो रहा है कि ए हाजियो कि जब तुम लिबास एहराम में हो जाओ और वापस घर आओ तो दरवाजों से आओ। एक जो साहिब अक्ल है, साहिब खर्द है, साहिब शऊर है, वो कहे कि खुदा ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आपने ये आयत को नाजिल किया। वहां पर सवाल हुआ कि हाजी जब अपने घरों में हज का लिबास पहन लेते थे तो वो क्या करते थे, वो दीवारें फलांग फलांग के आते थे। क्यों? उनको ये बुरा लगता था, उनकी जहन में ये होता था कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी अगर हम दरवाजे के रास्ते पे आए। किसी ने पूछा इमाम सादिक से इस आयत की तावील, इमाम ने कहा कि जो कले खुदा में, कले तौहीद में इस तरह जाएगा, यानी वो नकब लगा के जाए, इस तरीके से है कि उसने अहले बैत का दर छोड़ के किसी और दर से वो जाने की कोशिश कर रहा है। और जो ऐसे है कि वो हम 14 के वसीले से इस दर की तरफ जाना चाहेगा, कले खुदा की तरफ जाना चाहेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो उसने दरवाजे से गया है। और हमेशा याद रखें और इस चीज को कि हमने अहले बैत का दर थाम लिया है तो इसीलिए हम जमाने में कामयाब व कामरान है। एक सलावत हदिया कर देंगे। बात हो रही थी कि इमाम नकी की जो हदीस है, ज़ियारत है अस्सलामु अलैका या अब्वाब अल्लाह। तो जब बाबे खैबर के पास हम जाएंगे, जब एक सवाली आया, जब हम जाते हैं किसी के पास सवाल करने तो उसने देना दरवाजे से है। ये दर खुदा का दर है। और जब हमें कुछ खुदा के दर से मिलना होता है तो ये 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दर है कि जिससे मिलता है। कि जब मस्जिद में गया सवाली इतराज करते हैं, आयात नाज़िल हुई, रसूल खुदा के पास चले गए कि रसूल खुदा हमने एक अमल अंजाम दिया, देखिए कोई वही तो नहीं आ गई। उनको लगा कि शायद कोई दस्तक आनी है वही। तो वहां पर क्या था, बाबे खैबर ने जो अपने हाथ से अंगूठी दी थी वो यदुल्लाह का
हाथ था। क्यों यदुल्लाह का हाथ पाया? क्योंकि उसने मांगा खुदा से था, लेकिन मिलना उसको उस बाप से था, उस दरवाजे से था कि जिसने मशीयत इलाही खरीद ली थी। इसलिए मशीयत इलाही जब खरीद ली तो खुदा ने उस हाथ को यदुल्लाह का हाथ बना लिया और सवाली को सवाल का जवाब मिला। ये फजाइलो मनाकिब हम क्यों बयान होते हैं? इसीलिए कि लोग जमाने वाले समझें कि उनके फजाइल, इतराज होता है ये भी एक कि क्यों अभी तक फजाइल बयान हो रहे हैं, क्योंकि हम जमाने वालों को ये बताना चाहते हैं अभी तक तुम फजाइल के कुने हकीकत तक नहीं पहुंचे। मारिफत सलेमान कुजा, मारिफत मन कुजा। सलेमान की मारिफत कहाँ और मेरी मारिफत कहाँ? बहुत फर्क है। हम अपनी जिंदगियों में ये चाहते हैं कि अपनी मारिफत बढ़ाएं, तो फिर ही हम खुदा के रास्ते पे, खुदा के दर पे पहुंच पाएंगे। एक सलवात हदिया कर देंगे। इसीलिए तो जब रसूल खुदा से एक हदीस मरवी है और हमारे बरादरान की किताबों में भी है कि रसूल खुदा की तरफ से जब हर नबी को उसका मौजज़ा अता हुआ, हजरत मूसा को क्या मौजज़ा अता हुआ? असा का मौजज़ा, कि वो उससे मौजज़ा दिखाते थे। हजरत इब्राहीम को क्या मौजज़ा अता हुआ? कि आग को ठंडा कर लिया। हजरत ईसा को क्या मौजज़ा अता हुआ? कि वो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। और जब रसूल खुदा की बारी आई, रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा ने मुझे मौजज़े की सूरत में ये अली अता किया है, कि वो अली जो शुजाअत में वो कमाल का दर्जा। हम यूं कहते चलें, और हदीस भी है कि अगर हमने देखना हो कि खुदा की तालीमात जब अल्फाज में हमारे पास आई तो हम कुरान देखते हैं, और जब इसी कुरान की अमली तफसीर देखनी हो तो हम अली की शख्सियत देखते हैं, अली की सीरत देखते हैं कि अली ने पूरी जिंदगी जो अमल अंजाम दिया है वो ऐन ही कुरान है, और जो अली ने अमल अंजाम दिए हैं वो ऐन ही वो कुरान है। कि ना अली की जिंदगी में हम कोई ऐसा पहलू नहीं दे सकते कि अली की जिंदगी में कोई हो कि जो हरफ कुरान के बगैर उन्होंने अंजाम दिया हो। और फिर जमाने वाले इतराज करते हैं हजरत अबू तालिब की सीरत में। अबू तालिब तो वो थे कि जब उन्होंने कोई कलाम किया, उन्होंने काम किया, तो खुदा ने उसको कुरान में भेज दिया। ये वो अहले बैत का घराना है, वो अजमत वाला घराना है। और मैं बात आपको बता चुका कि कहां से ये दो धड़े बन चुके, कहां से हमने दीन को जुदा हो चुके। एक और बात, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, अगर आपको सर्च करना हो एक चीज इसराइलियात के नाम से, कि ये इसराइलियात क्या है, ये एक यहूदी कबीला था और यहूदी साजिश थी कि उन्होंने क्या किया, 100% वो यहूदी थे और इस्लाम को भी जानते थे। उन्होंने ऐसे काम किया कि इसराइलियात एक बनाया, लिबादा जाहिरी तौर पे इस्लाम है लेकिन अंदर यहूदियत छुपा के इस्लाम के अंदर नफूज कराया कि ये जो मुसलमान हैं, ताज़ा मुसलमान हो रहे हैं, ये अपने दीन से फिरते रहें। और आहिस्ता आहिस्ता फिर के हमने नतीजा वो देखा कि 61 हिजरी में हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के हाथ पे बेअत करवाने के लिए वो आमादा हो गए थे। ये नतीजा वहां से चलता है और आके यहाँ तक पहुंचता है। ये किस लिए आपको बात की कि रसूल खुदा की जिंदगी में हम देखें, रसूल खुदा यही ताकीद करते थे मुनाफिकीन को कि तुम जाहिरी तौर पे मेरे साथ हो लेकिन बातिन तुम्हारा किसी और के साथ है। आज की दुनिया हमें जो डाइवर्ट करना चाह रही है सोशल मीडिया के थ्रू, अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो यही आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोचो फिक्र को वो अपनी तरफ कर रहे हैं। जाहिरी तौर पे हम अपने अमल अंजाम दे रहे हैं, अपने रस्म त्यौहार अज़ादारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मनसब से और अपनी असल जो हकीकत है उससे दूर होते चले जाएंगे। एक सलावत हदिया कर देंगे। आपकी खिदमत में जिस आयत की तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि कौन हस्ती है मुतमइन है, खुदा की तरफ से भेजे हुए मासूम होते हैं और लोगों के बनाए हुए मासूम में फर्क होता है। बारिश तरीन, रोशन तरीन अगर मिसदाक इन आयात का देखें तो चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। और ये मासूम हस्तियां हमें इल्म देती हैं। और अगर ज्यादा मारिफत पे इमाम हुसैन की मारिफत हम देखें तो ज़ियारत आशूरा हमारे लिए बस है। ज़ियारत आशूरा का नाम आ गया, एक चीज बताता चलूं, इरफान के वादी में जो सबसे बड़ा नाम गुजरा है वो गुजरा है हजरत आयतुल्लाह सैयद काजी तबातबाई, कि जिनकी कब्र मुताहर वादी उस्सलाम नजफ में है, जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान। उन्होंने बहुत सारे शागिर्द तैयार किए।
حضرت آیت اللہ تقی بہجت جو ہمارے ہی زمانے میں اور کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اس کے علاوہ اور بہت ساری شخصیت، حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، کہ جن کا فلسفے میں بہت زیادہ کام ہے. اور اس وقت اگر فلسفے ویسٹرن فلسفی کو کسی نے جواب دیا ہے اسلامک فلسفی، وہ اسی کتاب میں ہے. بدایت الحکمہ آیت اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات. وہ جب انتقال کر گئے تو وہ ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آئے. یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت آیت اللہ تقی بہجت انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے استاد، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی ایک ایسی خواہش جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو. وہ کہتے میں نے اپنی روزمرہ زندگی میں زیارت عاشورہ میں نے کبھی ترک نہیں کی، لیکن میں پڑھتا صرف ایک دفعہ تھا. وہ کہتے مجھے ایک حسرت ہے، اگر مجھے وقت ملتا میں دن میں 2 3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا. یہ وہ زیارت ہے کہ شاید ہم شروع میں دیکھیں گے سخت ہے، اس کے کلمات، اس کے اذکار جو ہیں وہ 100 دفعہ ہیں، ہم اس سے ڈر جائیں گے. لیکن آپ اس کو تھوڑا کر لیجئے، 50 کر لیں، 50 سے کم 20 کر لیں، اس سے کم 10 کر لیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہم ایک دفعہ ضرور اس ذکر کو پڑھیں. کیوں؟ شروع میں شاید سخت لگے گی، شیطان ہمیں ورغلائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کے آبا پہ لعنت ہے اس میں. آہستہ آہستہ جب عادت ہو جائے گی تو ہم خود وہ زیارت جب تک ہم نہیں پڑھ لیں گے ہمیں نیند نہیں آئے گی. امام حسین کی وہ زیارت ہے. اور ایک کلمے کی تشریح کر کے میں آگے رب دوں، آپ کی زیادہ زحمت نہیں دینی. السلام علیک یا ابا عبداللہ. ہم امام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. یہ جو ایک بیچ میں ورڈ ہے نا یہاں پہ السلام علیکہ، اس پہ میں توجہ آپ کی چاہوں گا. ایک صلوات ہدیہ کریں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی صاحب شخصیت یا جو صاحب منصب ہوتا ہے ہم اس سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے، ہم ایک واسطے کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پر امام وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، یہ کبھی فکر نہ کرنا کہ میں اس منصب پہ ہوں، اس مقام پہ ہوں، لیکن تم سے دور ہوں. یہ کا لفظ لا کے عربی میں کہتے ہیں کہ یہ سامنے والے کو مخاطب، یعنی آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں آپ یا تم کا، یہ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ امام سے میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں اور امام کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اے امام، مجھے آپ سامنے حاضر و ناظر نظر آ رہے ہیں اور میں آپ پہ سلام کر رہا ہوں. جب انسان اپنی زندگی میں یہ قاعدہ بنا لے گا، اور امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ دنیا محضر خداست، کہ یہ ظاہری جو ہم بیٹھے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، یہ عام معصومین نہیں دیکھ رہے، ہماری یہ غلطی ہے. اگر ہم اس کو ورد کو اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں ایسے کلام کر رہا ہوں کہ امام میرے سامنے ہیں، تو میری زندگی یکسر بدل جائے گی. میں بالکل اپنی زندگی کو ایک اور نئے طریقے سے گزاروں گا، ایک اور مرحلے سے، ایک اور فکر کے ذریعے سے گزاروں گا، اور میں ہر لمحہ امام کے حضور حاضر رہوں گا. یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں کہ امام کی زیارت پہ ہم جاتے ہیں، ہم وہاں پر چلے جائیں، کعبہ میں چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، وہاں پر جائیں، صرف زری پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم حاضر و ناظر نہ ہوں، ہماری زیارت نہیں. لیکن اگر ہم یہیں کھڑے ہو کے، ہم اپنے گھر سے، یہاں سے کھڑے ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ امام میرے سامنے حاضر و ناظر ہے، گویا ایسے ہے کہ ابھی عبداللہ میرے سامنے ہے اور میں نے امام کو سلام کیا، اور امام جواب دیں گے علیک السلام میرے بندے، تم پر بھی میری طرف سے سلام. صلوات ہدیہ کر دیں گے بلند کر. امام کی وہ عظمت، یہ لقب، القاب، اصل صفات خداوند منان کی ہیں. خدا کی ایک صفت ہے بصیر ہونا، خدا کی ایک صفت ہے، ایک نام ہے سلام. یہ ہمارے پاس ایک جو رائٹ چلتا آ رہا ہے کہ خدا کے 99 نام ہیں، یہ نہیں ہے. دعائے جوشن کبھی کھول کے دیکھیں، ہزاروں نام ہیں، اور ہزاروں نام میں جب ہم گم ہو جاتے ہیں، شب قدر کہ جب ہم پڑھتے ہیں وہ زیارت اور پڑھتے ہیں، خدا کو سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم خدا کے ان معارف میں گم ہو جاتے ہیں کہ خدا کی کیا ذات ہے، کیا ہستی ہے کہ ہم نے ابھی تک پہچانا نہیں. اگلا مرحلہ اس کی زیارت کا، السلام، سلام آخر کیا ہے. سلام پہ ایک تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، ایک صلوات ہدیہ کر دیں گے. سلام ہم کہتے ہیں سلامتی ہونے کو. اچھا، خدا نے بھی قرآن میں جا بجا سلامتی کی ہے. سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی آل یاسین. آیا سلام ہم کرتے ہیں یعنی دوسرے کی سلامتی کی دعا کرنا، اور آپ دوبارہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ آپ بھی سلامت رہو.
आया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा कोई ऐसा है कि जब उन पे सलाम फेरा जाएगा उनका मकाम व मर्तबा बढ़ जाएगा? इमाम हुसैन पे भी जब हम सलाम भेजते हैं कि इमाम आप पर सलाम हो, इमाम को सलाम की जरूरत है या मुझे सलाम की जरूरत है? एक सादा मिसाल से, एक माली एक बाग में काम कर रहा हो, अब ना माली का वो बाग है ना पानी माली का है, माली की सिर्फ मेहनत है कि वो जो फूल हैं उनको तरोतरावत दे, उनका ख्याल रखे। अब एक दिन वो माली क्या करे, उसी बाग से फूल तोड़े और जाके मालिक को हदिया दे। अब इसमें मालिक उसको शाबाश दे या ये कहे कि ये तो मेरा ही बाग है, तुमने ये मेहनत की कि तुम मेरे लिए फूल ले आए हो, इतना तो शुक्रिया कहेगा कि तुमने ये की। अब बाग, सलामती का बाग तो उनका बाग है, मारिफ का बाग तो उनका बाग है, मेरी क्या मजाल, मैं किस दर्जे पे हूं कि मैं उनको पलट के सलाम कहूं? यहां पर जवाब ये मिलता है कि खुदा की जात फैज की जात है, वो फैज की घराने हैं, वो फैज और करम करते हैं, लुत्फ करते हैं कि जब हम उन पे सलामती भेजते हैं वो हमारी ज़र्फियत नहीं देखते, वो हमारे गुनाहगार की नहीं देखते, वो अपने लुत्फ व करम देखते हैं, वो अपनी अदालत को देखते हैं, अपने करम को देखते हैं और हमारी झोलियां भर देते हैं कि ए बंदे तू मेरे पास, तूने एक दफा या अल्लाह कहा है और मैंने तेरी झोलियां भर दी हैं। ये वो घराने हैं। एक बुलंदतर सर ये वो घराने हैं कि जो हमें झोलियां भर भर के देते हैं और इसीलिए हम जमाने वालों के सामने इफ्तिखार करते हैं कि जमाने वाले आओ हमें शहीद करो, हमें जितना मारना चाहते हो, मगर इस डर से हम 1 इंच पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि बज़ाहिर जिंदगी में शायद कभी मुश्किलात आ जाएं, कभी परेशानियां आ जाएं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें उस दुनिया में क्या मिलना है। अबू बसीर इमाम का साहब इमाम के पास आया कि इमाम नाम बसीर है मगर आंखों से नाबीना है। कहता है कि इमाम आप तो इमाम हैं, आप तो मुअज्जा करामत दिखा सकते हैं। इमाम ने दस्ते यदुल्लाही फेरा, क्या उसको नजर आने लग गया? जब उसने दरो दीवार देखे, इमाम ने अगले मरहले पे फिर हाथ फेरा कि ए अबू बसीर अब देखो, अब जो देखता है महल्लात देखता है, बाग देखता है, दूध की नहरें देखता है। कहते कि इमाम फर्क क्या है? इमाम ने फरमाया कि ए अबू बसीर, खुदा का निजाम ऐन अदल है कि खुदा ने जब तुम्हें यहाँ पर मुश्किलात दी हुई थी, यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजें नेमतें नहीं दी हुई थी, वहां पर बहिश्त के बाग देने थे। और उसने क्योंकि समझ गया, बसारत भी रखता था और बसीर भी था, समझ गया कि मौला मेरे से ये आंखें वापस ले ले, क्योंकि मुझे मालूम है ये चंद दिन की जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी इन मुश्किलात में, मगर वो मकाम मुझे चाहिए कि जो खुदा ने मेरे लिए रखा। यह है अदालत खुदा कि खुदा ने ऐन अदल के निज़ाम पर हमें यहाँ पर भेजा है। और एक आखिरी लम्हा और मतलब बयान करूं कि अगला जो जुमला है, जो लफ्ज है अबा अब्दुल्ला, इमाम का लक़ब अबा अब्दुल्ला, इमाम की कुनियत। अबा कहते हैं फर्जंद के बाप को। अरब में ये बहुत ज्यादा राइज है। अगर आप अभी भी ज़ियारात पे जाएं, खुदा आपको ज़ियारात पे लेके जाए और दुआ किया करें कि ये जो मुश्किलात हैं, सिक्योरिटी मुश्किलात और जो कल परसों से ये मुआहदे तय पा रहे हैं कि इन फ्यूचर कोई अच्छा हो और ये इनके रिलेशंस अच्छे हो जाएं कि बहुत सारे ज़ायरीन पिछले सालों से नहीं जा पा रहे ज़ियारत पे, कि ये रोड की जो कनेक्टिविटी है ये बहुत हेल्प करती है बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, इमाम का एक लक़ब है अबा अब्दुल्ला, यानी वालिद तमाम तर लोगों के फर्जंदान के। अच्छा, हम यहाँ पर सवाल करते हैं ये लक़ब कब रखा गया, ये कुनियत कब रखी गई? अभी जब इमाम मुतवल्लिद हो रहे हैं, अभी तो इमाम का कोई फर्जंद नहीं है। और वो मकाम कि जब रसूल खुदा के सामने ये मौलूद लाया गया और रसूल खुदा ने पूछा ए अली आपने इस मौलूद के क्या नाम रखा है? मौला अली ने फरमाया रसूल खुदा ये कैसे हो सकता है, आप मौजूद हो और मैं नाम रखने पे आपके नवासे के सिबकत ले जाऊं? रसूल खुदा ने फरमाया कि ए अली जिस तरीके से तुम मेरे ऊपर सिबकत नहीं ले सकते, इस मौलूद का नाम रखने में मैं खुदा से सिबकत नहीं ले सकता। और खुदा की तरफ से जिब्राइल नाजिल हो इस वक्त कि इसका नाम लेके इसका नाम शब्बर और शबीर रखना है, और उस वक्त ये कुनियत भी पाई। ये वो दर है कि जिस पे फरिश्ते आकर गेदाई करते हैं। जमाने वाले लाख चाहें जो कहने लगे, लेकिन कभी इसकी अजमत को ठुकराया नहीं जा सकता। एक सलावत हदिया कर देंगे, बोलूं क्यों नाम रखा गया इमाम हुसैन का? इमाम रूहानी बाप है हम सबके,
کیوں؟ جس طریقے سے امام نے حق و باطل کے درمیان ایک خط کھینچ دیا، کوئی مائیکل آ کے اس خط کو مٹا نہیں سکتا، کوئی آ کے یہ سمجھا نہیں سکتا کہ حق و باطل کے درمیان خط کیا ہے۔ یہ صرف عظمت حسین ہے کہ یہ بتا گئے، یہ صرف عظمت حسین ہے۔ مقام اگر بی بی کا دیکھنا ہو، اسی لیے تو قرآن کی جب حقانیت، رسول خدا کو جب اپنی حقانیت پیش کرنی پڑی اور قرآن کو بطور معجزہ پیش کرنا پڑا، تو آیہ کوثر، سورہ کوثر سامنے آئی کہ اے علی یہ آیت لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ علی لے لو اس کو اور جا کے کعبہ پہ ٹانگ دو، لگا دو۔ اور وہاں پر ان کا جو بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ صرف کلام ہو سکتا ہے تو کلام الہی ہے، جو مالک ہے سارے کلاموں کا۔ بی بی کی وہ عظمت والی ذات ہے۔ اور ایک جو فرمایا گیا ہے، بی بی ایک انسان کی شکل میں حور ہے، اور بی بی کی یہ عظمت ہمارے اوپر عیاں ہے۔ اور زمانے نے یہاں سے ہی مشکلات کے شروع کیا ہے کہ بی بی پہ جتنے مصائب ڈھائے گئے، بی بی پہ جتنی پریشانیاں آئی، اور یہ سارا زمانہ چلتا رہا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بس ختم کروں اپنی بات کو کہ معصوم ہستیاں، ان کا مقام و منزلت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کون حقیقت میں بتا چکا، سلمان و ابوذر و مقداد مولا علی کے ساتھ رہے، باب خیبر کے ساتھ رہے، باب علم کے ساتھ رہے، علم لیتے رہے، مگر وہ جو مقام علی ہے، ابھی سلمان اس کی الف بے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی جو نچلی ترین لائن ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام اور عظمت ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ہیں، حضرت عباس علمدار، بی بی زینب صلوات اللہ علیہا، حضرت علی اکبر، وہ اس مقام و منزلت پر ہیں کہ معصوم نہیں ہیں مگر معصوم کی زیر سایہ رہی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کہ جو علم میں، عرفان میں جس نے حسین کے ساتھ ساتھ زندگی گزاری ہو۔ یہ ایک بہت تشبیہات کبھی کبھار غلط ہو جاتی ہیں کہ حضرت عباس کے بارے کہا جائے کہ حضرت عباس جلال میں رہتے تھے اور وہ ان کی طبیعت جلالی تھی، ہوگا، لیکن جلال کو کنٹرول کرنا، جلال کو اس وقت کام میں لانا کہ جب حسین کہے، جب وقت کا امام کہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ تو اس نے کبھی بھی، امام نے جب کہا کہ عباس ابھی تلوار نہیں نکالنی، عباس نے کبھی تلوار نہیں کھینچی۔ مولا نے کہا عباس وقت آئے گا تمہارے جہاد کا، اور وہ وقت آیا۔ عزیزدارو، بس بات کو ختم کریں۔ علماء ایک داستان بیان کرتے ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عیسائی، اور خدا نے اس کو اولاد نہیں دی ہوئی تھی، اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، خدا نے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، بڑے ان کے میڈیکل جو بھی ٹریٹمنٹ کیا، آخر خدا نے ان کو اولاد دی۔ جب اس کو اولاد ملی، اور جیسے ہی ایک بہت خوبصورت بیٹی خدا نے اس کو دی تھی، لیکن خدا کا امتحان بھی ساتھ ساتھ تھا۔ ہم سارے بندے تکویناً تشریعاً ہیں خدا کے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ بہت سارے ہیں تکویناً جن کو رزق مل رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، شاید وہ تشریعاً نہ مانے، لیکن وقت آئے گا کہ سارے خدا کی وحدہ لا شریک پہ عمل کریں گے۔ خدا نے اس کو ایک بیٹی عطا کر دی، لیکن جیسے ہی وہ بیٹی تھوڑی بڑی ہونے لگی، پتہ چلا کہ بیٹی پیرالائز ہے، بالکل نچلا دھڑ پیرالائز تھا۔
मालदार था, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले गया अमल। डॉक्टर ने कहा इसमें 1% भी अगर चांस होता तो हम कुछ कर लेते और इसको हम दोबारा से जिंदगी दे देते कि ये चलने लग जाती, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो परेशान हाल अपनी जिंदगी गुजारते रहे, चलते रहे। लेकिन उसके घर के साथ हमसाए में ये दूर करके एक पड़ोसी रहते थे जो मोमना खातून थी, जैसे हमारे घरों में भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में मुहर्रम में एक दिन नजर दिलाई जाती है हजरत अब्बास की नजर, इस बेटी को ले आओ। बेशक कि तुम नहीं मानते हमारे खुदा को, तुम नहीं मानते इमाम हुसैन को, तुम नहीं मानते हजरत अब्बास को, लेकिन ले आओ, बाबुल हवाइज की हमने आज वसीले से एक नजर दी हुई है, खुदा तुम्हारी दुआ सुन ले। वो ले जाती है, मुश्किल से उसको उठा के जाती है, दुआओं में बैठती है, मुनाजात में, जिक्र मजलिसों मातम में बैठती है, वापस आ जाती है। लेकिन इस शिकवे के साथ आती है कि यहाँ पे भी मैं गई, मुसलमानों के अब्बास ने मेरी हाजत रवाई नहीं की। सिर्फ इस शिकवे का आना था कि वो अपने घर चले गए, रात सो गए। वो लड़की कहती है कि रात शायद गालिबन 1-2 का टाइम था, निस्फ शब गुजर चुकी थी। ख्वाब में एक शख्सियत आती है, नूरानी शख्सियत, और वो उसे कहा कि बुलाती हैं कि आओ मेरी तरफ आओ। वो बेटी कहती है, लड़की कहती है कि मैं चल नहीं सकती। उस नूरानी शख्सियत ने इशारा किया कि तुम कोशिश तो करो। वो कोशिश करती है, उसके पाँव चलने लगते हैं। वो पाँव जब जमीन पे आते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। वो शख्सियत उसको शफा दे के जाने लगती है। वो कहती है कि ये तो बता दो कि आप कौन हो। उसने कहा मैं अब्बास हूँ। अपनी माँ से कहना अब्बास कभी शिकवा करने वाले की हाजत को है रद्द नहीं करते, कि उसकी माँ ने शिकवा किया था। मैं कहूँगा मौला वो तो एक ईसाई खातून थी, ईसाई थी, आज आपके मुसलमान चाहने वाले आए बैठे हैं, आपके हुसैन के मानने वाले आए बैठे हैं, आपके रसूल खुदा के चाहने वाले हैं, खुदा के उम्मती आए बैठे हैं कि ए अब्बास हमारी भी हाजतें बुलंद कर लें। आपको जो मकाम बाबुल हवाइज दिया गया है, आइए हमारी दुआएं भी कबूल कीजिए। हजरत बाबुल हवाइज हजरत अब्बास, दीन मोहम्मद का बच गया, दीन अली का बच गया, कुंबा अली का ज़िबा हो गया। हजरत उम्मुल बनीन कि जिनके 4 बेटे थे, चारों के चारों बेटे इमाम हुसैन की नुसरत में करबला कुर्बान हो गए। जब मदीना का वाक़या हो चुका था, हजरत उम्मुल बनीन आया करती थी कि ए मदीने वालों, मुझे अब उम्मुल बनीन ना कहा करो, मेरे तो चारों के चारों बेटा कुर्बान हो गए। मौला अली ने अब्बास को कहा था, अब्बास एक वो वक्त आएगा कि जब तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना पड़ेगा। अब्बास वो वक्त आएगा मेरे हुसैन पे कि तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। अज़ादारों, आ गई वो मंजिलें, गुजरता रहा 28 को काफिला चला, मक्का पहुंचा। मक्का के बाद जब इमाम को मजबूर कर दिया, इमाम राही करबला हुए, करबला आके बस गई करबो बला। 3 मुहर्रम आई जब पानी बंद हो गया अहले बैत पे। 7 मुहर्रम से अल अतश की आवाजें बुलंद हो गईं। कहते हैं कि 3 से ही पानी बंद हो चुका था और 7 को जो पानी बच गया था वो खत्म होने लग गया। 10 मुहर्रम का दिन आन पहुंचा। हर लम्हे असहाब इमाम हुसैन के साथ हैं। बनु हाशिम वाले इमाम हुसैन के दाएं बाएं हैं कि कैसे हो कि ये जंग टल जाए, मगर वादा इलाही था। गुजर गया आशूर का दिन, असहाब कुर्बान हो गए, अपनी जिंदगी दे बैठे। बनु हाशिम का वक्त आया, अली अकबर ने अपनी जान दे दी, कासिम ने अपनी जान दे दी, ओनो मोहम्मद जान दे चुके। अब अब्बास आए मौला के पास, मौला अब तो इजाजत दे दीजिए, अब अब्बास के सीने में सांसें रुक रही हैं। मौला अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। मौला देखते हैं अब्बास की तरफ, अब्बास मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के सिपहसालार हो, तुम तो सरदार हो। अब्बास एक दफा दाएं देखते हैं, एक दफा बाएं देखते हैं, कहते हैं मौला वो लश्कर किधर गया कि जिसका मैं सिपहसालार हूं। मौला अली अकबर तो जा चुके, ओनो मोहम्मद तो जा चुके, कासिम जा चुके, सारे असहाब जा चुके, मैं किस लश्कर का सरदार हूँ। इतने में आवाज आती है खैमों से, अल अतश अल अतश अल अतश। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, आज अब्बास के गम में आए बैठे हो, आंसुओं को पूछते पूछते ये भी दुआ करो, बाबुल हवाइज, आप बाबुल हवाइज हस्ती हैं, हमारी हाजतों को कबूल करें। अल अतश की जो आवाजों का आना था, मौला कहते हैं ए अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाजत नहीं देता,
सिर्फ एक काम करो, जो अल अतश की आवाजें आ रही हैं, कोई पानी की सबील करो कि अली असगर और सकीना तक पानी पहुंच जाए। अब जो आए हैं अब्बास खेमे में क्या देखते हैं, बच्चे हैं खाली मशकीज़ें उठाए हुए, कभी अपने सीने के साथ लगाते हैं, कभी उसको उल्टा करके देखते हैं, कोई एक बूंद पानी की हो तो पानी मिल जाए। चचा, सकीना आगे आती है, चचा पानी का कुछ इंतजाम करें, मेरा अली असगर प्यासा है। मौला झुकते हैं, सकीना के कदम के बराबर पहुंचते हैं, सकीना मशकीज़ा पहनाती है। मौला अब्बास एक नेज़ा हाथ में लेते हैं। अब जो अब्बास सवार हुए हैं, चले हैं फुरात की तरफ पानी लेने। 4000 का लश्कर पहरा दे रहा था फुरात के किनारे। मौला पहुंचते हैं और वफा अब्बास की को सलाम, लश्कर हटा के घोड़ा जो हाँप रहा था, घोड़े को पानी में उतारते हैं, कहते हैं कि ए बेहवान, तू तो पानी पी ले। घोड़े की भी वफा को सलाम करें कि उसने कहा मौला आप प्यासे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि मैं प्यासा पानी पी लूं। मौला की वफा को सलाम। अब्बास उसे कहते हैं कि जिसने पानी पीना तो दूर, पानी की खुशबू को भी अपने गले तक पहुंचे नहीं दिया। मौला ने मशके सकीना को पुर किया। अब अब्बास चले हैं, यही इरादा है कि घोड़े जल्दी से मुझे खयाम में पहुंचा दे कि ये मैं पानी किसी तरीके से पहुंचा दूं। अब जो लश्कर ने हमला किया, चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं। अब्बास ने अपना सीना मशक से लगाया हुआ है कि मशक में छेद ना हो जाए। एक लईन जो दरख्त की ओट में बैठा था, अब्बास के दाएं बाजू का निशान लेता है। अब्बास के दाएं बाजू का कलम होना था। अब्बास ने कहा ये सकीना के सदके, मशक को बाएं बाजू में लिया। आगे जो चले हैं, एक और लईन ने बाएं बाजू का निशाना लिया, बायां बाजू कलम हुआ। अब्बास ने अब मशक सकीना को अपने दांत में ले लिया और कहा घोड़े किसी तरीके से ये मशक जो है, ये पानी ये खयाम में पहुंच जाए। अब जो चले हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। वो अब्बास की जिनका दायां बाजू कलम हो चुका, बायां बाजू कलम हो चुका, अब वो तीर रोकें तो कैसे रोकें। एक ने देखा, हुरमला ने वो आगे आया कि कैसे इस मशक का नेजा लूं, मैं मशक का निशाना लूं। आगे आया, उसने एक तीर खींचा और मशक का निशाना लिया। अब पानी का बहना था, अब्बास की आस बह गई। अब्बास नाला हो गए कि अब पानी नहीं पहुंच सकता। अब जो कहा घोड़े को, घोड़े अब खेमे की तरफ नहीं जाना, अब जंग की तरफ रुख कर ले। अब अब्बास के जिनके बाजू कलम हो चुके, हर तरफ से तीर आ रहे हैं, घोड़े पे संभल ना पाए। अब मैं सवाल करूंगा, जो भी शहीद गया है, जिसने भी जंग की है, उसके हाथ सलामत थे। जब घोड़े पे संभल ना सकता था, तो जब जमीन पे आता था, हाथों के सहारे आता था। अब जो अब्बास ने जीन पे संभल ना पाए, अब जो जमीन की तरफ आना, वो जिसके सीने पे तीर हो, कमर पे तीर हो, अब वो कैसे आया होगा। जैसे ही वो आया, सीने के तीर कमर की तरफ से बाहर आ गए। सलाम किया, ए मौला आपका गुलाम जा रहा है, गुलाम का आखिरी सलाम कबूल करे। मौला ने कहा, ए अब्बास तेरे जाने से मेरे कमर का जोर टूट गया। अब जो पहुंचे हैं मौला ने अब्बास का सर अपने दामन में लिया है। अब्बास ने छट से सर हटा लिया, कहा कि अब्बास, मौला ने दोबारा सर को अपने दामन में लिया। अब अब्बास कहते हो कि मौला मेरा सर हटा दीजिए। क्यों? अभी थोड़ी देर में आप जीने जुलजना से फर्श से जमीन पर आएंगे, आपका सर लेने वाला कोई नहीं होगा। मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे मौला का सर जो है वो जमीन पे हो। बस मौला कहते हैं कि अब्बास मेरी दो ख्वाहिश हैं, एक तो मेरी आखिरी जियारत आपकी करना चाहता हूँ, मेरे खून में आंसू है, मेरी आंख में आंसू है, इसको साफ कर दीजिए। मौला साफ करते हैं। मौला अब्बास मौला को निगाह की तरफ देखते हैं और दूसरा कहते हैं, मौला मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा, मैं ये सकीना से वादा करके आया था कि सकीना तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। अब जो मौला चले हैं, मौला अब्बास का अलम ले लिया हाथों में, जैसे ही जा रहे हैं खयाम की जानिब, तो बीबियां इंतजार कर रही हैं कि अब्बास जो है वो पानी ले आएंगे। सकीना ने जो आस दी हुई थी, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए कि सकीना ने कहा बच्चों आ जाओ, मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं। अब जो देखा कि ये अलम आगे जा रहा है, अब्बास तो नहीं आए, इमाम हुसैन आगे आ रहे हैं। जब भी अज़ादारों जैसे ही मौला आते थे, एक वैन बुलंद होता था। जैसे ही कोई शहीद आता था, कासिम का लाशा आया तो वैन बुलंद हुआ, वाह कासिमा वाह हसना। अली अकबर आगे आए, अली अकबर पे वैन बुलंद हुआ, वाह अकबरा वाह कासिमा। जैसे ही अब्बास आए और शाम गरीबा जब बीबियों की चादरें छीनी गई, बीबियों की रिदाएं छीनी गई, बीबियों ने कोई और वैन नहीं किया, यही किया, वाह अब्बासा वाह हिजाबा।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.